Okay, so welcome back again. It's day 36 and today we'll be solving this maximum consecutive elements in an array after modification. So you're basically given an array nums, and what you can do is like you can do only one operation of selecting any number of elements and increasing them by at most one value. So and then you have to give the maximum length of consecutive elements. So basically if you see this particular nums array, you can increase the elements at indices 0 and 3, that is this and 0 1 2 3 this 1 and 1. So your array after that would become something, sorry, this one, and just say like this one, and after those two operations your nums array would become something like this. And if you see the total number of consecutive elements you can pick is 1 2 3, so that's the consecutive list that you can get, and therefore the maximum answer is 3, and you cannot get any better answer than 3. Like over here also you cannot pick any number and increase them such that you get a length of maximum consecutive elements, because like it's 1 4 7 10, right? So you also, all you can do is you can get a maximum length of 1 only. Again, constraints are simple: nums dot length 10 raised to 5, nums at 10 raised to 6, therefore you cannot apply any sort of brute force. Yeah, so that's it. Now let's get to the solution. So suppose you are given something like 1 comma 1, then 2 3 4 5, ठीक है, something like this. So first thing obviously what you'll do is you would sort this. So this is the sorted nums, and then you would store something like this. So this is a DP question, so what you'll store is you will store a 2D DP, and it would look something like this: 0 of I, what the DP of and 1 of I, DP of 0 of I and DP of 1 of I. What 0 of I represents is what's the answer if you start from index I, and you have not increased the number at index I. That's your DP of 0 I. Similarly is, again, you started index I. What's the answer if you started index I and you have increased the number at index I? Increased at I, not increased at I. These are the two states that you have to store. Once you have this, it's very easy to do the state transition, which now let's get to the state transition. So suppose you are at a particular number, let's just say 2. Take a no, don't select 2. Suppose you are at this particular one. So in my code I've traversed from right to left. You can also traverse from left to right. The code would be a bit different, but for in this code I've traversed from right to left. So as we do in DP, you actually assume that you have the DP values of these particular numbers. Okay, let's assume you have the DP values of these particular numbers, and you are currently at this particular index. So first let's calculate DP of 0 of I. So let's give all of them some index: 0 1 2 3 4 5. So now we have to calculate DP of 0 1, which basically means DP we are starting from index, sorry, DP of 0, which actually means that you are starting from index 0. Sorry, you are not increasing the number at index this. So DP 0 means that you are starting from index 0 and you did not increase the number at index 0. Now now that you didn't increase the number at index 0, how you can update this? So how can DP of 0 comma 0 get updated? What all options do you have? So first thing that you have to check is you have to look for a number to your right, and it should be, first thing, it can be a 1. Okay, it can be a 1. If it's a 1, so suppose you are at index 1, right? So you found a 1 over here at index 1, and you know that we assume that we know the DP values of these particular values or these particular indexes. So what you'll do is, first you can store a map or anything you want. Suppose you found out that I have a number 1 at index 1. So what you can do is, it would actually be 1 plus, and we need a consecutive length, right? Like consecutive set of elements. So it would be DP of, you found the index 1. So basically 1 comma 1. And now what is this 1 comma 1? This is that I found a number which is equal to me, but I can only make a consecutive set with that element if that number is increased. That means you have to increase this 1 to 2, then these two can make a consecutive series. And if this is getting increased to 2, that means DP of 1, that is what this 1 means,
इंक्रीज दैट आई, करेक्ट राइट, एंड 1 मीन्स ये वाला इंडेक्स, गॉट इट। सो ये एक ऑप्शन है कि 1 प्लस, एंड व्हाट इज दिस 1 प्लस, यू जस्ट एडेड एन एलिमेंट टू द कॉन्जिक्यूटिव सेट, एंड dp1,1 मतलब अभी सीरीज वहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट 1 वाला एलिमेंट अभी इंक्रीज हो चुका है। दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज योर सेकंड ऑप्शन? नाउ you will find a number which is greater than you. Suppose you found this 2. You will keep a track of these numbers. Like I used a map, it's up to you what you want to use. So this is like एक 2 मिल गया तुमको, right? और उसका इंडेक्स भी 2 है। You have another option कि 1 इसके पहले भी जुड़ सकता है, बट नाउ यू डोंट वांट टू इंक्रीज उस इंडेक्स पे नंबर, क्योंकि वो 2 ही सही है। सो 1 प्लस डी पी ऑफ 0, दैट मीन्स यू डिड नॉट इंक्रीज दिस, एंड उसका इंडेक्स विच इज़ 2। This is the second option that you have, correct? So these are the ways जो तुम डी पी ऑफ 0,0 को अपडेट कर सकते हो। एक तो तुम 1, अगर तुम्हें कोई बाद में तुम्हारे सेम एलिमेंट मिल गया, जैसे 1 को अपने बाद एक 1 मिल गया था, तो उस 1 को एक इंक्रीज करके 2, यू कैन ऐड दैट टू योर आंसर। सपोज राइट में ही तुमको 2 मिल गया, अगेन यू कैन जस्ट अपडेट दैट एंड लाइक ऐड टू योर आंसर। So this is one thing, but before that you will have to check if 2 exist करता है नहीं, 1 exist करता है नहीं, 2 exist करता है नहीं, that all things you have to check. So that's how you like that's how I have set dp of 0,0. Now let's come to dp of 1,0. इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो 1 है ये अब ये एक इंक्रीज़ हो रहा है। Now how do you deal with that? तो मतलब ये तो 2 बन ही रहा है, अभी तुम मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। सेम थिंग, ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर ये 2 है तो यू विल फाइंड अ नंबर विच इज़ ऑलरेडी 2, तो तुम्हें ये वाला नंबर मिल गया। सो अगेन 1 प्लस डी पी ऑफ, बट दिस टाइम इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम देखो हमने इंक्रीज़ नहीं किया था क्योंकि 1 के बाद 2 लग गया था, बट ये जो 2 है मुझे अभी इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 1 प्लस डी पी ऑफ 1, दैट इज़ मैंने इंक्रीज़ किया, प्लस उसका इंडेक्स 2। ये था पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ये तो तुमने इंक्रीज़ कर ही दिया 2, नाउ जस्ट गो एंड फाइंड अ 3। ये तुम्हें 3 मिल गया यहाँ पे, करेक्ट, तुम्हें यहाँ 3 मिल गया। सो ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन अगेन डू अ 1 प्लस डी पी ऑफ, अभी उसको इंक्रीज़ करने का नीड नहीं है, राइट? सो 1 प्लस डी पी ऑफ व्हाट डू यू से, उसको इंक्रीज़ नहीं करना है 0 एंड दिस 3, ठीक है। ये डी पी ऑफ 10 अपडेट हो गया। नाउ और एक चीज़, अगर 2 सेम नंबर्स मिल गए, जैसे 1 के बाद अगर तुम्हें 1 मिल गया, तो इस केस में ना डी पी ऑफ दोनों चीज़ अपडेट हो सकते हैं। सो डी पी ऑफ 0,0 भी अपडेट होगा, डी पी ऑफ 1,1 भी अपडेट होगा, सॉरी 1,0 भी अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1,1 है तो यू कैन मेक दिस, सॉरी अगर तुम्हें 1,2 मिला है, सॉरी माय बैड, अगर तुमको यहाँ पे 1,2 मिला है, अगर तुम 1 पे थे, तुमने मैप में सर्च किया, तुम्हें एक 2 भी मिल गया, तो इस केस में तुम्हारा डी पी ऑफ 0, इसका इंडेक्स ले लो i है, इसका इंडेक्स ले लो j है। सो डी पी ऑफ 0i भी अपडेट होगा एंड डी पी ऑफ 0j भी अपडेट होगा। अगर तुम्हें ये 2 मिल गया, मतलब एक नंबर ज़्यादा मिल गया, डी पी ऑफ दिस इज़ डी पी ऑफ 1j, क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज़ डी पी ऑफ, बेसिकली दोनों डी पी स्टेट्स ऑफ i वुड गेट अपडेटेड इफ़ यू फाइंड j एज इन एक एलिमेंट ग्रेटर दैन i। वाई इज़ दैट द केस? क्योंकि अगर तुमने इसको नहीं बढ़ाया तो वो j तो सिंपल वो तो सिंपल ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस डी पी ऑफ 0 ऑफ j। और अगर तुमने इसको बढ़ा दिया, दैट इसको 2 कर दिया, तो तुम j को भी बढ़ा दो, 3 कर दो, सो दैट इज़ अगेन 1 प्लस डी पी ऑफ 1 ऑफ j, सॉरी हाँ 1 ऑफ j। सो इफ़ यू सी, अगर तुम्हें 1 के बाद 2 मिल गया, तो मैं तुम सर्च कैसे कर रहा हूँ ना, मैं अगर तुम्हें बता दूँ तो मैं एक नम्स ट्रैक हमेशा रख रहा हूँ। तो ये वाला जो केस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि मुझे 1 के बाद 2 मिल गया, तो मेरा करंट एलिमेंट नम्स आई है, मैं नम्स ट्रैक में फाइंड कर रहा हूँ करंट प्लस 1, और बेसिकली मैं हर इटरेशन के बाद नम्स ट्रैक सेव कर रहा था। सो अगर मुझे नम्स ट्रैक करंट प्लस 1 मिल गया, दैट इज़ 2 मिल गया, तुम देखोगे तो मेरे 0i भी अपडेट हो रहा है एंड 1i भी अपडेट हो रहा है, एंड कुछ नहीं, वो बस जो नेक्स्ट एलिमेंट मुझे मिला है ना इंडेक्स में, उसी का प्लस 1 हो रहा है, क्योंकि सिंपल है, राइट? अगर मेरे को 1 मेरा एलिमेंट 1 था, उसके बाद मुझे 2 मिल गया, तो मैं इसको 1 2 को तो सेव कर ही सकता हूँ, लाइक इसका जो भी डी पी वैल्यू है उसमें प्लस 1 कर ही सकता हूँ, और इसके 2 में भी इसका 3 जोड़ सकता हूँ, दैट इज़ इसका डी पी और इसका इंक्रीज वाला डी पी, यहाँ पे इसका नॉट इंक्रीज वाला डी पी 1 में ऐड कर सकता हूँ, और इसमें इसका इंक्रीज वाला डी पी ऐड कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर मुझे सेम ही नंबर अपने आगे, लाइक इफ़ यू सी मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ,
अगर मुझे सेम ही नंबर अपने उसमें मिल गया, वही जो मैंने अभी भी तुम्हें केस बताया था, सो दैट इज़ अगर मुझे वन के बाद वन मिल गया, वन के बाद लाइक वन मिल गया, सो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इसको नहीं बढ़ाऊँगा और मैं इसका बड़ा हुआ आंसर ऐड कर दूंगा। तो सपोज इसका वैल्यू जे था, तो डी पी ऑफ वन एंड जे प्लस वन। सो इफ़ यू सी, मैंने डी पी ऑफ ज़ीरो आई में, क्योंकि मैं इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ, बट अगर मैं इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ तो जे का वैल्यू एक बढ़ना चाहिए। तो दैट्स वाई डी पी ऑफ ज़ीरो आई इज़ डी पी ऑफ वन ऑफ जे प्लस वन। एंड अगर मैंने इसको बढ़ा दिया, मेरे को वन के बाद वन मिला और मैंने इसको टू कर दिया, तो यहाँ पे ये यहीं रुक जाएगा, इसका तो सिंपली वन सेट हो जाएगा, क्योंकि तुमने वहाँ पे पूरा सीरीज़ ही तोड़ दिया। सो डी पी ऑफ वन आई वुड बी सिंपली सेट टू वन। ये वाला केस मैंने बता दिया, तुम्हें अगर इक्वल एलिमेंट मिल गया। ये वाला केस अगर तुमसे दो टाइम बड़ा एलिमेंट मिल गया, लाइक दो से ज़्यादा, वॉट आई मीन इज़ अगर वन है और तुम्हें थ्री मिल गया, ऑल यू कैन डू इज़ तुम इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, दैट इज़ डी पी ऑफ वन ऑफ आई सेट कर सकते हो, विच इज़ इक्वल्स टू डी पी ऑफ, इसको इंक्रीमेंट नहीं करना अभी, दैट इज़ डी पी ऑफ ज़ीरो ऑफ जे प्लस वन। डी पी ऑफ ज़ीरो ऑफ जे प्लस वन, वही किया यहाँ पे भी, इफ़ यू सी। एंड फिर और ज़ीरो आई तो कुछ अपडेट नहीं होगा, लाइक अगर तुमने वन को अपडेट ही नहीं किया, लाइक इंक्रीज़ ही नहीं किया, तो अगेन सीरीज़ यहीं ब्रेक हो जाएगी। दैट इज़ इट। हाँ, तो इतना ही है। मैंने ये नम स्ट्रैक अलग से थोड़ा यूज़ किया, आई थिंक इसके बिना भी यू कैन सॉल्व दिस। तुम्हें बस यहाँ पे हल्का सा एक चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें डी पी आई को लाइक क्यूमुलेटिव रखना पड़ेगा थोड़ा। एंड हाँ, लास्ट में आई एम जस्ट सेट गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी पी, एंड दैट्स ऑल। कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना। आई विल ट्राई ऑल्सो मेकिंग द एडिटोरियल ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड वर्जन, क्योंकि वो थोड़ा बेटर है। इसमें तुम्हें ये नम स्ट्रैक एक एडिशनल मेमोरी यूज़ करनी पड़ रही है। देयर इज़ अनदर सोल्यूशन वेयर यू डोंट हैव टू यूज़ दैट, मतलब यू विल हैव टू जस्ट प्ले विद दीज, तुम्हें ऐसा अलग से नम स्ट्रैक ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो आई विल ट्राई टू मेक एन एडिटोरियल फॉर दैट टू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।